Welcome, students. Today we will start with the topic real numbers. Before starting the content, एक सिंपल सी बात जो मैं आप सबके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि बेटा कोई भी टॉपिक या कोई भी लेक्चर जब आप देख रहे हैं तो बिल्कुल पेन और कॉपी आपके साथ में होना चाहिए ताकि आप उस लेक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व कर सके। सिर्फ मूवी की तरह एंजॉय करने के लिए प्लीज वीडियो लेक्चर्स को न देखें, कुछ भी कंटेंट आप नहीं सीख पाए। ओके बेटा, so without wasting the time, just continue with the chapter. That is the first chapter in our introduction NCERT book, chapter name real number. So in the chapter real number, basically what the first property that we have to use, that is the knowledge of the different types of the numbers. All we know that the different types of the numbers in our previous classes up to the class 9, but it's my duty to just revise that which types of the different numbers we learn and which types of the numbers are being used in this chapter. Okay बेटा, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शंस के साथ, जिसमें से सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ that is the rational number. I starting with this point, rational number. What is the rational number? The simple expression, the number which expressed in the form of P by Q. The number which expressed in the form of P by Q is like the example of rational number. The next one is irrational number. The next one is irrational number. What is the basic definition of irrational number? Irrational number are those which cannot be expressed, which cannot be expressed, can't be expressed, which cannot be expressed in the form of P by Q are the irrational number. After that rational and irrational number, the next is real numbers. What are the real numbers? The real numbers are the combination of rational and irrational. Real numbers. आज तक आप जो भी नंबर्स के बारे में जानते हैं, जितना भी नंबर सिस्टम का नॉलेज आपको है, वो सब कुछ आप किस हेडिंग के थ्रू पढ़ते हैं? रियल नंबर, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर. ओके बेटा, सो दीज आर द बेसिक नंबर्स. आफ्टर दीज नंबर्स I will continue with the next few numbers. These numbers are natural numbers. All we know that natural number start from the value 1 to infinity. I am writing here natural numbers. Natural numbers are those which is counted from the number 1, 2, 3 and up to the infinite. Next one is the whole number. What is the whole numbers? In the whole numbers, the counting values start from the 0. After 0, 1, 2 with the same condition up to the infinite. The next number is integers. ये आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा उसमें इंटीजर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा. सो जस्ट observe here that what is the integers. Integers are those numbers which contain all positive number, all negative number and 0. Integers are those numbers basically which contain all positive numbers, their negatives and 0. Okay बेटा, अब बात आती है कि इंटीजर्स के बारे में क्लासिफिकेशंस कैसे और क्या टर्म्स यूज करते हैं. तो इंटीजर्स के कुछ बेसिक टर्म्स को मैं और क्लियर करता हूं ताकि कहीं पे भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी नोट्स में अगर आप देखते हैं तो कौन कौन से बेसिक टर्म्स आते हैं इंटीजर्स में. सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव इंटीजर्स. व्हाट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स? पॉजिटिव मींस ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. पॉजिटिव इंटीजर्स वी ओनली इंक्लूड द पॉजिटिव वैल्यू. देन नेगेटिव इंटीजर्स. इन नेगेटिव इंटीजर्स we include all negative numbers. In negative integers we include all negative numbers. अब कुछ स्टूडेंट्स अपने माइंड में क्वेश्चन जरूर सोच रहे होंगे कि सर इंटीजर्स में तो 0 भी आता है तो उसको ना तो आपने पॉजिटिव में लिया और ना ही उसको आपने नेगेटिव में लिया. बिल्कुल बेटा, आप इस चीज पे ध्यान रखिएगा
जीरो न तो पॉजिटिव में इंक्लूड होता है और न ही नेगेटिव में इंक्लूड होता है। जीरो न्यूट्रल है, जीरो किसी के साथ नहीं होता, पॉजिटिव के साथ भी नहीं है और नेगेटिव के साथ भी नहीं। ओके बेटा, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मैं दो तरीके से और डिफाइन करता हूं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में यूज होते हैं वर्ड। फर्स्ट वन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। और बेसिकली बेटा मैं जितने भी टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉपर्टी में, किसी न किसी थ्योरम में यूज डेफिनेटली होंगे, इसलिए मैं इन सारे बेसिक टर्म्स को आपके स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में क्लियर कर रहा हूं। ओके बेटा, नॉन नेगेटिव। अब नेगेटिव वर्ड के साथ मैंने यूज कर दिया वर्ड नॉन। नॉन का मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर इस इंटीजर के कॉम्बिनेशन में नेगेटिव नहीं होना चाहिए तो दैट मीन्स कहां से स्टार्ट होगा काउंटिंग नंबर? जीरो से स्टार्ट होगा। सो इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू जीरो एंड अप टू द इनफाइनाइट। बेसिकली ये जो साइन मैं यूज कर रहा हूं ये इंफिनिटी का साइन होता है। क्या साइन होता है? इंफिनिटी का, दैट मीन्स अनकाउंटेबल। ओके बेटा, नॉन नेगेटिव। आफ्टर दैट इफ आई विल यूज द वर्ड नॉन पॉजिटिव, if I use the word non-positive integer, the same things, वही मतलब है जो नॉन नेगेटिव की तरह यूज होता है। नॉन पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो फिर क्या होगा? जो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए दैट मीन्स ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडेड जीरो। ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में जीरो को इंक्लूड करते हुए उन नंबर्स को लिखा जाता है। तो इन टर्म्स को मैं आपके साथ वापस फिर से यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि मैथ्स का एक बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि कोई भी चीज जो आपको स्टार्ट में बताया जाता है उसको कहीं ना कहीं अपने आगे के लेक्चर्स में, आगे के प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। जैसे कोई भी जब मूवी देखते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इंटरवल से पहले तक कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब मूवी एंड होती है तब तक सब कुछ क्लियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट टू एंड तक अपने लिंक करना सीख लिया। ठीक है बेटा, तो मैथ्स भी अपना अब एक मूवी की तरह ही है, ध्यान रखिएगा, तो उस चीज को इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिएगा। सो इंटीजर्स के साथ ये चारों कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बेटा, आफ्टर दीज बेसिक्स, तो ये यहां तक का बेसिक्स जितना भी है ये सब कुछ कहीं ना किसी तरीके से आपके नॉलेज में है। तो नंबर्स के ही कुछ बेसिक्स की पॉइंट्स मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाहता हूं, और उन डिस्कशन में मैं नंबर्स में सबसे पहले इंक्लूड करता हूं प्राइम नंबर्स। है बहुत कॉमन सी चीज है, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है ना उसी में सबसे ज्यादा गलती होती है, ध्यान रखिएगा। ये मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिंट है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के लिए बेसिकली डेफिनेशंस अलग अलग तरीके से टेक्स्ट बुक में अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली समझने के लिए सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको फॉलो करना है। क्या? दोज नंबर्स विच हैज एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर के डेफिनेशन में एक सिंपल सा पॉइंट में इंक्लूड कर रहा हूं, दोज नंबर्स विच हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, व्हाट इज दैट मीन्स ऑफ एग्जैक्टली टू फैक्टर्स? if I will say exactly two factors, for example if I will write a number 2, so 2 has the two factors 2 and 1. If I will write a number 3, 3 has only two factors 3 and 1. If I will write a number 5, 5 has only two factors 5 and 1. तो देखिए बेटा, वो नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो दो फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो वो नंबर खुद और एक नंबर 1. 1 क्यों? क्योंकि आप सबने सुना होगा सबका मालिक एक है, इसलिए एक तो सबके साथ आएगा ही आएगा, उसके साथ में वो नंबर खुद है। तो इन सारे नंबर्स के अंदर ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स के अंदर। तो अगर मैं कुछ प्राइम नंबर्स के बेसिक्स नंबर्स की सीरीज को फॉलो करूं तो इट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 2, इट स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आप n नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा असाइनमेंट आप कर सकते हैं कि 1 to 100 तक में जितने भी प्राइम्स होते हैं उनकी कॉमन लिस्ट बनाइएगा और उसको चेक कीजिएगा कि 1 to 100 तक में कितने प्राइम्स होते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कुछ सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 को क्यों नहीं कंसीडर किया? तो बेटा 1 के लिए एक पॉइंट बहुत क्लियर करना जरूरी है, दैट मैंने क्या डेफिनेशन बोला था? एग्जैक्टली टू फैक्टर। तो अगर मैं सिर्फ 1 की बात करता हूं तो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, कौन हुआ? 1 खुद है, तो टू फैक्टर्स नहीं है, इसलिए 1 को प्राइम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से कहीं पे रट्टा मार के लिख लेना,
1 is not included in the prime. 1 is not included in the prime. Okay beta, so that is the basic key point of the prime numbers. After the prime numbers, next which I have to explain to you, जो नेक्स्ट मेरे को आपसे डिस्कस करना है, दैट इज द कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट जो आपसे डिस्कस करना है वो आपका है कंपोजिट नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स के बाद में कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स के लिए मैं बेसिकली आपसे ये कह सकता हूं, द नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. इसके लिए बेसिक कीवर्ड क्या यूज करना है अपने को, मोर देन 2 फैक्टर्स. More than 2 factors. For example, if I will take a number 4, तो 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 4 के लिए फैक्टर 1 होता है, 4 के फैक्टर 2 होता है और 4 के लिए फैक्टर 4 होता है. If I take a number 6, 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 6 फैक्टर है. So all these numbers are the examples of composite number. तो कंपोजिट में अभी मैंने 1 को इंक्लूड नहीं किया है, कंपोजिट में अभी 1 को इंक्लूड नहीं किया है. तो बेसिक स्टेटमेंट फॉलो करना होता है क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. एक बेसिक जो स्टेटमेंट आपको फॉलो करना है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 न तो प्राइम में इंक्लूड होता है और न ही कंपोजिट में इंक्लूड होता है. बेटा गलती मत कीजिएगा, 1 is neither prime nor composite. Okay beta, after this prime and composite number, the next number which I am explaining to you is that co-prime. ये आप सबके लिए एक न्यू एक्सप्रेशन है, co-prime numbers, जो अपने आगे की क्लासेस में कुछ टॉपिक्स में इंक्लूड करेंगे, इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर करता हूँ. व्हाट इज द co-primes? Co-primes बेसिकली ये टर्म्स कहां पे यूज करते हैं, co-prime numbers are those numbers which having a common factor that is only 1. दो नंबर्स के पेयर में होता है बेटा कंपोजिट, कभी भी सिंगल नंबर नहीं होता है. कंपोजिट आर द दोज नंबर्स which having a common factor only 1. For example, if you write a pair of number 4, 5, so both 4 and 5 having only one common factor, that is 1. If I will write a number 2 and 3, so 2 and 3 both having only one common factor, that is 1. So those numbers which having only one common factor are known as co-prime numbers. Okay beta, these are the definitions of the basics numbers. After this, if I will ask a question, even numbers, and if I will ask a question, odd numbers. एक सिंपल से इंट्रोडक्शन के साथ इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको. इवन नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन आप सब जानते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इवन नंबर्स को, लेकिन बेसिक जो की पॉइंट्स है वो आपका यही है, वो नंबर्स जिसके फैक्टर्स में 2 आता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं द नंबर्स व्हिच इज हैविंग अ मल्टीपल ऑफ 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ द इवन नंबर्स, एंड द नंबर्स व्हिच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑड नंबर्स. इस इवन और ऑड के बारे में मैं डिटेल में आपसे कुछ टाइम बाद फिर से डिस्कशन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ एक बेसिक इवन एंड ऑड. ओके बेटा, अब देखिए बेटा, आपने बहुत सारे नंबर्स का बेसिक इंट्रोडक्शंस आपने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में सीख लिया. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने आपको बता दिए, उन नंबर्स के काउंटिंग वैल्यूज के बारे में बता दिया. ऑलमोस्ट जो भी रिक्वायर्ड है वो सारे नंबर्स के बेसिक्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. अब आते हैं मेन कंटेंट पे, जो इस चैप्टर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं. एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी इन एनसीईआरटी? इट इज थ्योरम नंबर 1.1. एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 1.1? दैट प्रॉपर्टी नेम्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. बेटा तैयार हो जाएगा, क्लाइमैक्स आ रहा है आपके सामने, क्योंकि आगे जितना भी कुछ आप सीख पाएंगे, जितना भी कुछ आप नॉलेज गेन कर पाएंगे, वो सब कुछ इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड रहेगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. इन वर्ड्स को क्लियर करता हूं पहले मैं. यूक्लिड्स बेसिकली उस मैथमेटिशियन का नेम है जिसने इस प्रॉपर्टी को इन्वेंट किया था. डिवीजन, दैट इज द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द डिवाइजर. डिवीजन जो नॉर्मली अपने जो डिवाइड करते हैं ना, हमेशा जो भाग देते हैं, उसी को बोलते हैं डिवीजन.
लेमा। लेमा एक स्टेटमेंट होता है बेटा, जिस स्टेटमेंट को आप बाकी प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने में यूज करते हैं। लेमा वर्ड एक स्टेटमेंट है जिसका यूज क्या होता है, टू प्रूव द अदर रिजल्ट्स। ओके बेटा, टू प्रूव द अदर रिजल्ट्स। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिवीजन प्रॉपर्टी? फॉर द डिवीजन प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग हियर, लेट A and B are two positive integers. If I will take two positive integers named as A and B, so definitely if A and B are two positive integers such that there exist unique integers q and r, such that there exists unique integer q and r, and what is that condition? That is a is equal to bq plus r. What is that condition? A is equal to bq plus r. Why I am writing this expression a is equal to bq plus r? Because if we will take two numbers and if we perform the division, so definitely we will get a quotient value and we will get a remainder value. And in this division, the condition that I am including here is a greater than b. एक चीज पॉइंट आउट करने के लिए वो ये है बेटा कि दो इंटीजर्स में से ग्रेटर इंटीजर्स को किससे डिवाइड करते हैं, स्मॉलर इंटीजर्स से, क्योंकि इंटीजर्स में डेसिमल इंक्लूड नहीं होता है। दैट्स व्हाई a इज इक्वल टू bq प्लस r। अब एक कंडीशन जो यहाँ पे अपने सबको फॉलो करना होता है वो क्या, कि आपने डिवीजन परफॉर्म किया तो रिमाइंडर वैल्यू आएगा। तो रिमाइंडर में क्या पॉसिबिलिटीज होती है? रिमाइंडर का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। सो व्हाट इज आई एम राइटिंग हियर, कंडीशन फॉलो कीजिएगा बेटा, आर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाउ टू प्रोनाउंस इट, आर वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b. What is the b? B is the divisor. What is the b value? B is the divisor. In other forms, I can write as dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. That is the basic property of Euclid division lemma. How to write it? Dividend, that is a, divisor, that is b, the value of the answer, that is quotient, and the remaining value in the expression, that is the remainder. So that's why dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder, and in the standard expression that is represented as a equal to bq plus r. So this is the basic property based on the Euclid division lemma, which I will use in the further questions for the continue. So after this getting the definition property of Euclid division lemma, in the next I am explaining to you how to use this property. क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो टाइम पास करने के लिए तो इंट्रोड्यूस करते नहीं, तो कुछ ना कुछ उसका बेसिक पर्पज, कुछ उसकी बेसिक कैलकुलेशंस, तो कुछ क्वेश्चंस उस पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्या प्रॉपर्टीज को आपको क्वेश्चंस के लिए यूज करना है। क्योंकि मैथ्स में एक बहुत कॉमन सी बात होती है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है तो प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल फॉर्म अपने को बताया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और उसको जब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना होता है तो बच्चों का दिमाग एकदम से घूम जाता है कि अरे बताया तो कुछ और था और हो कुछ और रहा है। तो उसी चीज को मैं आपके सामने क्वेश्चंस के साथ क्लियर करता हूं और पहले एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे और किस पर्पज से करना है। तो उसके लिए मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, यूक्लिड डिवीजन algorithm. This is the property that I am going to explain to you, that is Euclid division algorithm. Basically Euclid division algorithm किस पर्पज से काम करता है और किस तरीके से काम करता है। Euclid division algorithm का बेसिक जो फंडामेंटल है वो क्या प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले इस वर्ड को क्लियर कीजिए, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बेसिकली क्या वर्ड होता है कि जब भी किसी स्टेटमेंट को या जब भी किसी एक्सप्रेशन को आप नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, जैसे मैं अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को एक एक्सप्रेशन में 3, 4, 5 टाइम्स अगर रिपीट करता हूं,
So that repetition process is named as algorithm. The repetition name as algorithm. So what is the basic use of the Euclid division algorithm? Euclid division algorithm is used to find the HCF or GCD. What are these abbreviation HCF or GCD? HCF is the abbreviations of highest common factor, और इसी का एक और दूसरा नेम, जैसे आपके भी बहुत सारे अलग अलग नेम होते हैं, तो इसी का एक अल्टरनेट नेम क्या यूज होता है क्वेश्चंस में? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन अदर वर्ड्स we can pronounce it as greatest common divisor. So to find the HCF or to find the GCD, both are the same thing. Which property is used in the process? Euclid division algorithm. बचपन मतलब इन क्लासेस 6, 7, 8 और 9 आप जो बेसिक मेथड जानते हैं HCF कैलकुलेट करने का, वो होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप बेसिक डिवीजन करके फाइंड आउट करते हैं ना बेटा। तो बिल्कुल उस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि वो भी आपके एक सिलेबस का ही कंटेंट है, उसको भी अपने उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। बट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू टू फाइंड द HCF फ्रॉम विच प्रॉपर्टी? फ्रॉम द प्रॉपर्टी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बेसिकली करना क्या है इस प्रॉपर्टी के लिए? इस प्रॉपर्टी के लिए आपको सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है और नंबर्स को आपने ए और बी कंसीडर किया, एंड इन द फर्स्ट स्टेप अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप जस्ट अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देन आफ्टर दिस स्टेप व्हाट यू हैव टू फॉलो? इफ आर इक्वल टू 0, अगर आपको स्टेप फॉलो करना है डिवीजन का, और अगर आपका आर वैल्यू 0 है, देन HCF is equal to B. In key terms, I am writing here, if remainder value is 0, then which value is the HCF? The value of the B. But एक क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसीलिए थर्ड स्टेप क्या कह रहा हूं? रिपीट यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को आपको रिपीट करना है, किस पे? ऑन बी एंड आर। देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा प्रॉपर्टी को, कि आपको अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना होगा? वापस से रिपीट करना है किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा को। कौन से नंबर्स पे? जो आपके फर्स्ट स्टेप का बी वैल्यू और आपके फर्स्ट स्टेप का आर वैल्यू। तो बेटा थ्योरेटिकल कई बार क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी जब टीचर एक्सप्लेन करता है ना, तो कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, और कुछ जो ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं उनको समझ में नहीं भी आता है। तो जब समझ में नहीं आता है तो उसको बेसिकली प्रॉपर्टी को समझाने के बाद में एग्जाम्पल्स तो होता ही है मैथ्स में हमेशा, तो मैथ्स में कोई डाउट तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी होगा सिर्फ उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, उसको किसी न किसी एग्जाम्पल्स और नंबर्स के साथ जरूर डिस्कस किया जाता है। तो पहला आप एक बार इस चीज को वापस से क्लियर कर दें, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूं। टू हाउ फाइंड द HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है बेटा? जो नंबर्स आपको गिवन है उनमें से एक को ए ऐड करें, एक को बी ऐड करें। स्टार्टिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था क्या कंडीशन, कि जो भी नंबर्स आप ए और बी ऐड करते हैं इसमें ग्रेटर नंबर हमेशा ए होगा और स्मॉलर नंबर हमेशा आपका बी होगा, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर हाईएस्ट वैल्यू के अंदर लोअर वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा। सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेप में ही आपका रिमाइंडर 0 है, तब जो बी वैल्यू है वो आपका HCF है। मेक इट क्लियर, पेन पेपर साथ में होगा। आई होप मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बोला था, पेन पेपर अगर साथ में है तो हर वीडियो के साथ साथ में जो प्रॉपर्टीज टीचर या मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको एज अ हिंट अपने पेन पेपर पे लिखते रहिए। ठीक है बेटा। R0, अगर R0 नहीं है तब आप सबको क्या करना है? आपको रिपीट करना है किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि वापस ए और बी में डिवाइड करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड किस पे करना है? डिवाइड करना है किस पे? बी और आर। ठीक है, तो ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। नाउ आई टेक अ एग्जांपल। अब मैं क्वेश्चंस के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं टू हाउ टू फाइंड द HCF।
तो देखिए बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो बेसिक क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी है वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। और उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का मैंने आपको क्या एक्सप्लेनेशन बताया, टू फाइंड द HCF। नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चन, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? फाइंड HCF of 225 and 135 using, बेटा शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा सा ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट नहीं हो। व्हाट आई एम रीडिंग हियर, द एब्रिविएशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL। ओके बेटा, जब भी मैं किसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो मैं क्या एब्रिविएशन लिखूंगा, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो व्हाट आर द टू नंबर्स, 225 and 135। आप भी पेन पेपर साथ में रखते हुए कंटिन्यू कीजिएगा मेरे साथ साथ में HCF फाइंड आउट करना है। So first, what I explained to you, that the given numbers, the greater number we will consider as A and the smaller number we will consider as B. Okay beta? So A value is 225 and B value is 135. Greater number को हमेशा A ऐड करना है और smaller number को हमेशा B ऐड करना है। अब बात ये है कि डिफिकल्टी यूक्लिड में नहीं है, डिफिकल्टी है कि स्टूडेंट्स को डिवीजन ही नहीं आता। जो क्लास फर्स्ट सेकंड में टीचर सिखाते थे हाथ पकड़ के, वो डिवीजन आज भी काम आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो की वो सेम है कि अपने को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। और अगर डिवीजन में प्रॉब्लम है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, तो डिवीजन बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अब कैसे करना है, A equal to 225, B equal to 135. So I am writing here by Euclid division lemma। बेटा, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से बेसिकली क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ रफ स्टेप्स होंगे, तो मैं वो यहाँ पे आपको राइट साइड में परफॉर्म करके बता रहा हूँ। कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करना है। सो व्हाट द फर्स्ट स्टेप आई टोल्ड यू, दैट यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे लिखते हैं बेटा एक्सप्रेशन को, A is equal to BQ plus R। So in rough work I start to divide, I am dividing here which number, 225 from which number, 135। तो डिवीजन तो बेटा वैसे तो आप सबको आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। 225 when you will divide by 135, that divided by value 1 कर रहे हैं ना, साथ साथ में फॉलो करते रहिएगा बेटा, आप भी पेन पेपर पे सॉल्व करें इसको। सो व्हाट द वैल्यू यू विल गेट, यू विल गेट द रिमाइंडर वैल्यू 90। अब ये नहीं कि इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल नहीं, रुक जाइएगा, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना। आपने किसके बारे में बात कर रहे हैं, इंटीजर्स के बारे में। इसके बारे में, इंटीजर्स के बारे में। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा इसको, 225 is equal to 135 multiply, what is the quotient, that is the 1, what is the remainder, that is the 90। अभी जस्ट 5 मिनट पहले अगर आप अपने रिवाइंड करते हैं तो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले प्रॉपर्टी में क्या बताया था कि आपको डिवीजन लेमा को फॉलो करना है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तब तो B वैल्यू HCF है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं। तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या हुआ, क्या क्वेश्चन गलत है, नहीं। क्या बताया गया था, बोलिए फटाफट से, क्या बताया गया था, रिमाइंडर 0 अगर नहीं है तो आपको वापस रिपीट करना है। किसको रिपीट करना है, किस नंबर पे रिपीट करना है, B वैल्यू और R वैल्यू। किस पे रिपीटेशन करना है बेटा, बोलिए एक बार साथ में, B वैल्यू और R वैल्यू पे। तो बेटा B वैल्यू मेरा कितना है 135, R वैल्यू कितना है 90। तो 135 को 90 से डिवाइड करना है। सर डिवीजन तो आता ही नहीं है, नहीं आता तो वहां देखो रफ वर्क में 135 को किससे डिवाइड करना है, 90 से डिवाइड करना। तो 90 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, 135 लिखा, कितने टाइम डिवाइड हुआ, डिवाइड हुआ 1 टाइम, 90 आ गया। क्या रिमाइंडर आया बेटा, सर आ गया, समझ, बहुत अच्छा समझा रहे हो आप तो 135 is equal to 90। what is the quotient, quotient value is the 1 and what is the remainder, remainder value is the 45। बचा हुआ वैल्यू कितना है 45। सर फिर एक बार रिपीट करना पड़ेगा,
बेटा तब तक रिपीट करना है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता। बिल्कुल हार नहीं माननी है, आएगा रिमाइंडर जीरो, लेकिन वो सही तभी आएगा जब सही प्रोसेस के साथ फॉलो करेंगे। अब वापस स्टेप्स, तो फिर से मैंने अभी आपको क्या बोला था बेटा, अब बी वैल्यू कितना है 90, आर वैल्यू कितना है 45, तो इसका मतलब फिर से डिवाइड करना है। तो सर इस बार तो मेरे को डिवीजन रफ में करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे को आता है क्या कि 45 के टेबल में 90 कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो 45 मल्टीप्लाई 2, 45 हाउ मेनी टाइम्स क्वेश्चन, 2 टाइम्स। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया, क्या आ गया, जीरो, यही तो चाहिए था। तो ये जीरो आना चाहिए, लाना नहीं है। इस बात को एक अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा बेटा कि जिस भी क्वेश्चंस के अंदर जो आना चाहिए वो आना ही चाहिए, उसको लाना नहीं है। लाना नहीं है मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत करके भी रिमाइंडर जीरो ले आते हैं, गलत करके भी रिमाइंडर जीरो ले आते हैं, तो रिमाइंडर तो जीरो आ जाता है लेकिन वो मार्क्स नहीं आते हैं क्योंकि वो प्रोसेस गलत होता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जीरो आना चाहिए। आ गया मेरा जीरो यहाँ पे। तो जिस स्टेप के अंदर रिमाइंडर वैल्यू जीरो आएगा, उस स्टेप के अंदर बी वैल्यू कितना है, बी वैल्यू बेटा कितना है बोल पा रहे हैं मन में, कितना 45, मैं तो आपको सुन नहीं पा रहा, तो 45 है, तो HCF कितना हुआ 45। So that is the answer of our given question. Find the HCF of 225, 135 using the, it may be written as Euclid division lemma और कुछ जगह पे Euclid division algorithm, दोनों में से कुछ भी लिखा आएगा। Just A and B, apply the process। डिवीजन बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, डिवीजन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। परफॉर्म दैट, write the step, then again the division, write the next step, and until you will get the remainder value 0, that value of the B is the HCF। एक लंबी सांस लीजिए क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मैं भी ले रहा हूं। ओके रिलैक्स है बेटा, कंटिन्यू करें अब। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट हाउ टू फाइंड द HCF। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटे से क्वेश्चंस के अंदर मैं सिर्फ डिजिट्स को इरेज कर रहा हूं, सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं बेटा, क्योंकि मैथ्स में जब तक एक प्रॉपर्टी के एक दो एग्जांपल्स नहीं डिस्कस करते तब तक वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है कि कैसे और किस वे में परफॉर्म करें। तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस को और बढ़ाते हैं, मतलब बड़ी डिजिट को लेके आते हैं, कुछ बड़ा भारी लेके आते हैं। क्या, फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220। कुछ बच्चों को तो देख के डर लग रहा होगा, इतने बड़े डिजिट का डिवीजन ये कैसे होगा, क्योंकि बेटा 196 और 38220 डरने की तो बात है क्योंकि डिजिट बहुत बड़ा है, 5 डिजिट का नंबर है, डिवीजन में भी बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है, आपके साथ मैं हूं और हमेशा रहूंगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे बेटा, दोनों में से ग्रेटर कौन है बताइए, 38220 ए लैट कर लिया, 196 उसको बी लैट कर लिया। वही कहानी वापस से चालू करें, आप मैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है बेटा। सो बाय आई एम राइटिंग एज अ एब्रीविएशन यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं बेटा, आप और मैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए बेटा, अभी मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि डिवीजन आना चाहिए। अब आराम से 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और इस डिवीजन को आप रफ वर्क में पहले परफॉर्म करें और उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी ईमानदारी रखिएगा बेटा, पहले आप डिवीजन को खुद परफॉर्म करें और फिर सॉल्यूशंस को यहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक्सप्रेशन क्या लिख रहा हूँ बेटा, 38220 when you will divide by 196। तो बेटा जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे यू विल बी सरप्राइज्ड, कुछ तो सरप्राइज आपको मिलेगा। कैसे कि 38220 का 196 से जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो डिवीजन 3 स्टेप्स, पहले 1 आएगा, फिर क्वेश्चन में 9 आएगा, फिर क्वेश्चन में 5 आएगा, तो कंप्लीट क्या बना 195, और फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपको अपना रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0। अरे यही तो चाहिए था, क्या चाहिए, रिमाइंडर
जीरो, तो रिमाइंडर जीरो आ गया, तो काम बहुत आसान हो गया। कैसे कि आपने यही बताया था कि जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस स्टेप के अंदर जो आपका बी वैल्यू है वो ही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर, 196। अब कुछ बच्चों को क्या है कि एचसीएफ तो कैलकुलेट करना आ जाता है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि ये बेसिकली फंडामेंटल है क्या एचसीएफ का। तो बेटा थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एचसीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो बोला जाता है, लेकिन बेसिकली इसका मैथ्स में मीनिंग क्या है, कहाँ पे इस क्वेश्चंस में कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो एचसीएफ आंसर 196 आने का मतलब क्या हो बेटा कि 196 वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। 196 is the greatest number, highest number through which we can divide the given numbers. Make it clear बेटा, इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करें कि जो भी आप आंसर फाइंड आउट करते हैं ना एचसीएफ का, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग ये है कि वो नंबर है, वो सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब इनको डिवाइड करने वाले तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 2 है, 4 है, 12 हो सकता है, और भी n नंबर्स ऑफ एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जो इन दोनों को डिवाइड करें, लेकिन सबसे हायर, सबसे बड़ा, सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 196, इससे ऊपर कोई भी नंबर नहीं। सो फ्रॉम दिस लास्ट टू एग्जांपल्स आई थिंक यू गेट द क्लियर दैट हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस है ये तो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में है। अब एक एनसीईआरटी टेक्स्ट के अदर देन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, टॉप सीक्रेट है, ध्यान रखिएगा। क्या है, टॉप सीक्रेट। कैसे है टॉप सीक्रेट कि कुछ स्टूडेंट्स अपने माइंड में एक अगर क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर अगर ये 2 नंबर नहीं होंगे कितने नंबर हो, 3 नंबर्स। अगर ये 2 नंबर्स नहीं होंगे कितने नंबर्स हो, 3 नंबर्स। तब ये प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, क्योंकि डिवीजन तो एट ए टाइम कितने नंबर पे होता है, 2 नंबर पे। बात तो सही है, जब बात सही है तो उसका फिर क्या सॉल्यूशन है, क्या अल्टरनेट है, वो मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए नाउ आई एम टेकिंग द 3 नंबर, लेकिन बेटा 3 नंबर से एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा बस सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। सो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18, 15 एंड 12। 3 नंबर ले लिए। देखो बेटा मैंने, आप क्वेश्चन सोच रहे थे और मैंने वो क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया। सोचना नहीं है, उसको बोलना है। बोलेंगे कैसे, कमेंट्स में बोलेंगे, कैसे, डाउट क्लास में कि सर ये सब कुछ कैसे होता है, पूछेगा जरूर आगे वाली क्लासेस में। 18, 15, 12 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बेसिकली सोचना क्या है, सोचना कुछ नहीं है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि यूक्लिड कितने नंबर पे अप्लाई होता है, सर वो तो 2 नंबर पे होता है, क्योंकि ए और बी में ही डिवीजन होता है, बट यहाँ पे तो 3 नंबर्स है। तो जब 3 नंबर्स है तो स्टेप फर्स्ट क्या है सॉल्यूशन का, स्टेप फर्स्ट आपका ये है कि जो 3 नंबर्स आपको गिवन है उसमें से कोई भी अपनी पसंद के 2 नंबर आप ले लो। अच्छा सर हमारी भी पसंद चलती है, बिल्कुल चलेगी बेटा। 3 में से कोई भी 2 नंबर अपनी पसंद के लो। तो सर मैं तो 18, मैं तो कौन से 2 नंबर ले रहा हूं, 18 एंड 15। मैंने 2 नंबर्स ले लिए 18 और 15। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत से पहले क्या करेंगे, इस 18 और 15 पे यूक्लिड अप्लाई कर देते हैं। तो उसको बेटा मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि 2 एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बता दिया दैट हाउ टू एक्सप्लेन इट एंड हाउ टू राइट इट। तो 18 और 15 पे अगर मैंने अप्लाई किया यूक्लिड, तो बेसिकली क्या आएगा, 18 और 15 से डिवाइड कितने टाइम होगा, 15 1 जा 15, रिमाइंडर क्या आएगा 3। वापस रिपीट करता हूं, बी वैल्यू और आर वैल्यू। बी वैल्यू मेरा 15 है, आर वैल्यू मेरा 3 है, तो 15 को 3 से डिवाइड कितने टाइम करेंगे, 5 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो बेटा 3 में से कोई भी 2 नंबर आपने लिए और उन 2 नंबर्स पे यूक्लिड अप्लाई करके आपका रिमाइंडर 0 आ गया। सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, द एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर, सो आई एम राइटिंग हियर एचसीएफ ऑफ, या ऑफ नहीं करके बेटा आप डायरेक्ट ब्रैकेट लिख सकते हैं, एचसीएफ 18, 15 इज इक्वल टू 3। 18 और 15 का तो 3 हो गया, लेकिन सर तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर के लिए अब आप फॉलो कीजिए क्या, स्टेप सेकंड। व्हाट इज दैट स्टेप सेकंड,
स्टेप सेकंड के अंदर बेटा आपको क्या करना है, दैट वी हैव टू टेक which two numbers, remaining third. What is that remaining third? 12. And which is the second number? The second number is the HCF of the first two which we have taken. सेकेंड स्टेप के अंदर किस पे अप्लाई होगा यूक्लिड? रिपीट कीजिए मेरे साथ में, रिमेनिंग थर्ड नंबर एंड द HCF ऑफ द टू नंबर्स विच वी हैव टेकन. तो दो नंबर्स कौन से लिए था आपने अपनी पसंद के, उनका HCF क्या आया था? 3. सो आई विल अप्लाई 12 एंड 3. सो अगर बेटा मैं 12 और 3 पे यूक्लिड अप्लाई करता हूं, देन हाउ टू राइट इट? 12 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कितने टाइम आता है ना 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. आंसर आ गया कितने टाइम? 4 टाइम्स. और रिमाइंडर क्या आया? 0. तो अब बताइए थर्ड नंबर और फर्स्ट टू का HCF लेके फाइनली HCF क्या हुआ? फाइनली HCF वैल्यू कितना हुआ? 3. सो व्हाट द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज HCF 18, 15, 12. 18, 15, 12 is equal to 3. That is the final answer of the 3 numbers. तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा मैंने एनसीईआरटी से डिफरेंट आपको बताया है. तो अगर कहीं किसी क्वेश्चंस में 3 नंबर्स का HCF आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, दैट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. है यूक्लिड ही, लेकिन उसको 2 स्टेप्स में अटेम्प्ट करना. कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स. बेटा समझ में आ रहा है? फॉलो कर पा रहे हो? आई होप, आई थिंक सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट में, आप डाउट क्लास में किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं. ठीक है बेटा? सो बेसिकली इन दिस लेक्चर व्हाट आई टीच यू, व्हाट आई टोल्ड यू, दैट द property Euclid division lemma. On the basis of Euclid division lemma, I explained to you Euclid division algorithm. Then the application of the Euclid division algorithm is to find the HCF. First 2 examples I have taken the 2 numbers. In the third question I have taken the 3 numbers. The procedure I explained to you to how to find the HCF. Okay beta? Now one more thing which I want to discuss with you is that कि HCF के कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट में है. HCF के कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस भी अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट में है. तो उस एनसीईआरटी टेक्स्ट का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. व्हाट इज दैट स्मॉल एग्जांपल? कि HCF के बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस लैंग्वेज में कैसे आते हैं. तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस को एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा. क्या कि अगर मैं आपसे ये कहूं, if you have 420 काजू बर्फीज, बर्फी की बात कर रहा हूं, भूख लग रही है तो नाश्ता कर सकते हैं. एंड इफ आई हैव 130 बादाम बर्फीज, लॉकडाउन खुल गया, मिठाई की दुकान चालू है, लेके आ सकते हैं बेटा. 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. अब करना क्या है? खाना नहीं है इनको, तो खाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, that if you have 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. now मेरी रिक्वायरमेंट क्या है आपसे? प्रॉपर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बेटा वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा. मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स कीवर्ड्स को यूज करते हुए इस क्वेश्चन के कंटेंट को कंप्लीट करता हूँ. ठीक है? तो अगर मेरे पास में ये इतने नंबर ऑफ बर्फीज है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? दैट वी हैव टू स्टैक. स्टैक का मतलब अरेंज करना. We have to stack this number of burpees. Okay beta? And what is that condition? What is the condition? Number of burpees should be same in each stack. क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर तो बहुत आसान है बेटा. What is the condition of the question? That the number of burpees should be same in each stack and take up the least area. यह है इस बेसिक क्वेश्चन का कंटेंट.
कि नंबर ऑफ बर्फीज जो होने चाहिए जिसको आपको स्टैक में अरेंज करना है, स्टैक का मतलब रो वाइज, मिठाई के डिब्बे में पैक करते हैं ना जैसे रो वाइज, वैसा ही सेम थिंग स्टैक्स करना है। तो नंबर ऑफ बर्फीज शुड बी सेम एंड टेक अप द लीस्ट एरिया। लीस्ट एरिया का मतलब, लीस्ट वर्ड का मतलब होता है कि कम से कम एरिया यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए? कम से कम एरिया। सो क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक? हाउ मेनी बर्फीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक्स? मेरा बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। क्या एरिया लिस्ट कैसे होगा? किसी भी एरिया को कम से कम कैसे यूज कर सकते हैं? जब एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम बर्फीज पुट कर सके। एरिया मिनिमम कब होगा? जब एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम बर्फीज को पुट कर सके। तो एक स्टैक के अंदर मैक्सिमम बर्फीज, अब ये तो है नहीं कि 420 के 420 एक ही स्टैक में अरेंज कर दो, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बर्फीज शुड बी सेम। दो कंडीशंस को एक साथ फॉलो करना है। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एक्सप्लेनेशन कि ये आंसर्स किस बिहाफ पे पॉसिबल है? बाय कैलकुलेटिंग द HCF ऑफ 420 एंड 130। इन सॉल्यूशन क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, that answer you can calculate with the HCF of 420 and 130. So just do this assignment, 420 130 का होमवर्क कीजिएगा HCF फाइंड आउट करने का, और जब आप आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 10। क्या आएगा वैल्यू? परफॉर्म द डिवीजन, गेट द आंसर। व्हाट आंसर you will get? You will get the answer 10. So what is the statement? 10 burpees can be placed in each stack. How many burpees we can place in each stack? 10 burpees in each stacks. So that which this process 420 काजू बर्फी, 130 बादाम बर्फी completely उस minimum area of tray के अंदर आप place कर सकते हैं। So okay बेटा, so basically in this lecture I explain all the properties on the Euclid division algorithm, calculating the HCF. In our next video, in our next lecture, I will continue with the property Euclid division lemma in the other formats, in the other questions. If you like this video, just enjoy watching it, and please बेटा इस लॉकडाउन के टाइम में अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें so that you can get maximum benefits. Good luck. We will meet in the next video. Thank you.